business and profession. So now we are going to start the second type of questions, which are based on computation of business or professional income. I told you thereby they will give us the profit. In this, they will give you either profit and loss, either income and expenditure account or receipts and payment account. And on that, we need to take only those incomes which are business or professional income, and we will take only those expenses which are business or professional expenses. And accordingly, we will compute the taxable income from business or profession. So now in these questions, they will give us trading profit and loss account. And now we have to rectify, because the profit what I have calculated was wrong profit. Income tax will not accept those profits which we have calculated with the help of financial accounting, because we have considered many items which are to be computed in other heads, not under head of business and profession. So those income as well as expenses we need to exclude there. We need to take it to those heads and will not be allowed here. So in this type of question, my answer will start with the profit or loss given as per profit and loss account. Whatever we will find on the debit side, not admissible or inadmissible, we will add those expenses. And whatever we will get on the credit side as an income which are not admissible or not required under head of business and profession to be subtracted, to be less. Question number 1. This is my question number 2. Following is the trading profit and loss account of Govinda for the year ending 31st March 2021. This is the profit and loss of Govinda. First, I will read out the adjustment as decided. Salary and wages include 18,000 paid to the proprietor. So till the date, you must have taken proprietor's salary in your profit and loss account. Yes or no? You have taken that proprietor's salary in your profit and loss or not? From FIJ. Yes, sir. But here in income tax, it will not be allowed. They are saying, if you want to earn salary, you better work as an employer-employee relationship. Business ka profit why you are getting? Because serving to that business, so that is not allowed. Okay? But any relative of proprietor, if they do have the concern qualification, and if they have been paid, then it will be allowed. Suppose proprietor's wife is working and they are qualified, and she has got the salary, or proprietor's son got the salary, then it will be allowed. Then it is required for business. Otherwise, अगर उनको निकाल के किसी और एक एम्प्लॉय को रखेंगे, तो भी उतना ही पगार देना पड़ेगा. ठीक है? Next, 400 paid to the proprietor's domestic servant. तो ये दोनों अलाउड नहीं होगा. तो सैलरी में कितना डिसअलाउड होगा? 18,400. तो सैलरी के बाजू में लिख देंगे 18,400 डिसअलाउड. यहाँ पे लिख के रखेंगे 18,400 डिसअलाउड. ठीक है? नेक्स्ट, rent include 1,800 being hostel charges to proprietor's son. Again, it's a personal expenses. Business
it will be allowed or not? No. Not allowed. Allowed. So hostel expenditure which is included in rent 1800 not allowed. तो जो not allowed है सब add होते जाएगा, याद रखना. Next. Insurance premium includes 1600 paid for life insurance policy on the life of proprietor's wife. Again, tell me which kind of expenditure it is. Tell me which kind of expenditure it is. Profit and loss. No, which kind of expenditure? Personal. Whether it is, yes, it is Personal. personal nature. Personal. Personal, capital, social, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ business. Again, in insurance premium, we will write 1600 not allowed. 1000 paid as a penalty imposed by income tax officer included in salary. This will also not be allowed. चलेगा क्या? पेनल्टी आपने इनकम टैक्स ऑफिसर को भरा है, लॉ को ब्रेक कर रहा है. लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, नॉट अलाउड. तो इन सैलरी 18,400 प्लस 1000 नॉट अलाउड. ये जितने भी नॉट अलाउड है ऑल विल बी एडेड. तभी मुझे बताओ, ओपनिंग स्टॉक इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट ऑफ बिजनेस और नॉट? बिजनेस के लिए अलाउड है या नॉट अलाउड है? बोलो. Not allowed. बगैर स्टॉक के बिजनेस कैसे करेगा, मुझे ये बताओ. Okay. Purchases 100% allowed. Purchases allowed or not allowed? Purchases allowed or not allowed? Not allowed. Not allowed. Allowed. इसके बगैर बिजनेस कैसे चलेगा दोस्त? सेल, सर ओपनिंग परचेज क्लोजिंग सब अलाउड होना चाहिए. सारा चीज चलेगा. ये सब रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए. इसलिए तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ आपका नॉलेज कॉमर्स में कितना अच्छा है. तो आप लोग कभी बिजनेस मत करना, बिजनेस के जैसा नॉलेज नहीं है आपके पास. सैलरी Yes, sir. allowed or not allowed? Allowed. Allowed. सिर्फ ये जो दिया हुआ है वो नहीं अलाउड होगा, यानी जो 18,000 इंक्लूडेड है, 400 इंक्लूडेड है, 1000 इतना नहीं अलाउड होगा, बाकी सब सैलरी अलाउड है. सिमिलरली रेंट पेड, Allowed. सिर्फ इतना सोचो, बिजनेस के लिए जरूरी है तो अलाउड, नहीं जरूरी है नॉट अलाउड. ओके ओके एवरीवन. Yes, sir. इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड और नॉट अलाउड? Allowed. 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 तक नहीं रहेगा. जैसे फायर इंश्योरेंस होता है, गुड्स इंश्योरेंस सब अलाउड रहेगा. बट अगर पर्सनल नेचर में है नॉट अलाउड. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अलाउड और नॉट अलाउड? Not allowed. प्रिंटिंग एंड Not स्टेशनरी allowed. के बगैर बिजनेस Allowed. चला लोगे तुम? कैसा नॉनसेंस आंसर था सचिन. आप बिजनेस चला रहे Allowed. हो, आपको नहीं लगेगा प्रिंटिंग स्टेशनरी. लिखोगे कहाँ भाई? बुक्स ऑफ अकाउंट किस पे बनाओगे? 100% अलाउड. एडवर्टाइजमेंट Allowed. 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 Household expenses Not allowed. not allowed. Allowed. Net profit starting point, यहाँ से तो हम लोग प्रॉफिट चालू करेंगे, इसको ही तो रेक्टिफाई करना है. ग्रॉस प्रॉफिट, Allowed. business income allowed. Dividend Not allowed. not allowed, not from business. बस हो गया, इसको मार्क कर लिया. तो जो डेबिट साइड नॉट अलाउड है उसको ऐड करना है, जो क्रेडिट साइड नॉट अलाउड है उसको माइनस करना है. चलो वन बाय वन. Again the format will remain same. Name of SSC Mr. Govinda. Solution question number 2, page number 177.
Follow the format. Then we'll take up one by one. See, by tomorrow, your business profession will be over. Similarly, by next week, your capital. See, these topics not required any extraordinary like what we have learned in salary. Leave salary के लिए अलग से 4 condition is there. Gratuity के लिए again we have to check whether private or government. Again in private, other than government, whether it is covered under POGA or not. यानी payment of gratuity act or not. तो वो बहुत सारे complexity सिर्फ सैलरी में है. बाकी सब टॉपिक बहुत कॉमन सेंस से एप्लीकेबल होता है. हाउस प्रॉपर्टी में तो एक फॉर्मेट याद कर लिया, विच एवर इज हायर, खत्म हो जाता है किस्सा. बिजनेस प्रोफेशन में अपना स्किल लगाना है. इट इज फॉर बिजनेस और नॉट. इफ नॉट, देयर विल बी 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन. In one, we will take only those income and expenses which is there, and in another type, we will start with the profit, which are disallowed expenses. We will add disallowed income. We will subtract. Because by 30th September, we have to finish your portion. We cannot take extra lecture other than 30th September. And don't be under impression and with the influence of other colleges students. Your exams will be conducted in the month of October. Maybe university exam conduct later on. Now it is autonomous college. आपका एग्जाम और रिजल्ट टाइम पे आएगा. अब आपको फायदा पता चलेगा कि सर ऑटोनॉमी में क्या फायदा. आज भी हमारे पिछले साल के बच्चों का रिजल्ट नहीं मिला है, वो भटक रहे. आपके केस में ऐसा नहीं होगा बिकॉज यू आर ऑटोनॉमस स्टूडेंट. नेक्स्ट ईयर आपको अगर हायर स्टडीज के लिए जाना है, इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा. Should we start? This was our question. Yes, sir. We'll start with the net profit. The net profit कितना है? How much was the net profit? 690. अच्छा लगता है तुम्हारे क्लास में ऑलमोस्ट हर एक बच्चा आंसर देता है. 69. Which are disallowed on the debit side? Opening stock तो allowed था, purchases allowed था, gross profit allowed था. Salary में गोची थी, क्या क्या था? It was that first one was proprietor's salary, which was disallowed. है ना? Yes. I will write Yes, that. sir. Salary to proprietor कितना? 18,000. दूसरा क्या disallowed था? Domestic servant का salary. Yes or no? 400. That will also be disallowed. These all are personal expenditures. Okay. Next. Rent paid include hostel charges per son. That is also not allowed. 1,800. Life insurance premium paid for wife. 1,600 will also not be allowed. है ना? यही सब है कि नहीं? हाँ सर. ये क्या है? हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस है 26,000. और लास्ट में क्या है? पेनल्टी है 1,000. 1,000. Breach of law is not allowed, never. तो कितना डिसअलाउड हो गया बेटा? These are the expenses which are disallowed. 48,800. Yeah, 48,800. Absolutely right. Okay.
अभी डिसअलाउड इनकम कितना है? एक ही आइटम था ना, सेल्स तो चलेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी चलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी चलेगा, डिविडेंड ही है कैसा? ये तो नो, Yes, sir. तो डिविडेंड ले लेंगे 3200, तो टैक्सेबल बिजनेस इनकम कितना आएगा? 45,600. आ गया आंसर। दिस शुड बी आंसर हियर आल्सो। ये प्रिंटोग्राफिकल एरर है, ठीक है। द राइट आंसर इज 45. 45,600. 46. ये गलत है, 45,600. ये गलत 45,600. है। तो ये दोनों को Sir, ऐड करें, 45,600. ये दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है? इसको 48,800 Sir, 49,490. 49,490. 3,200 करते तो कितना आता है? Minus 3,000. सर वही आ रहा है 46,290. 46,290. तो फिर गलत क्यों बोल रहा है रे गधेड़ा? दिस इज द राइट आंसर, 46,290. Yes, sir. Okay. Now let us go to next question, question number 3. ये सारे बच्चों ने ले लिया? Can I proceed to next question? Yes, sir. Okay. The next question is question number 3, page number 178. This is the profit and loss of Sri Gajanan for 31st March 2021. Salary to the staff 160 and all. First, what we will do, we'll read out the adjustment. Depreciation allowed according to income tax rule is 10,000. म्हणजे अगर depreciation यहाँ दिया रहेगा, that will be disallowed. Taking, okay, calculate the income from business. Now read out. This is depreciation. So he is having profit and loss account. Salary to staff. Tell me whether it will be allowed or not. Allowed. Salary to staff, 100% allowed. Country expenses, Allowed. allowed. Telephone Allowed. and postage. Allowed. Telephone and postage, Allowed. 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 Transport charges, Allowed. 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 Salary to proprietor, Not allowed. not Not allowed. allowed. Rent for the business premises, Allowed. 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 आपको सब मेरी जरूरत ही नहीं होगी, आप सीख गए पूरा. RDD, Not allowed. not allowed. Any reserve provisions are not allowed. Municipal tax for let out property, Not allowed. not allowed. Legal expenses, Allowed. allowed. Interest on capital, Not allowed. not allowed. Not allowed. Interest on bank overdraft, Allowed. allowed. Depreciation, depreciation. Not allowed. देखो एक्चुअली अलाउड होगा क्योंकि दैट इज एन एक्सपेंसेस, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 10,000 लेना है और हमने बुक्स में कितना लिया है? 16,000 लेना है. 16,000. या तो 6,000 लेना है, या तो हम क्या करेंगे, इसको डिसअलाउड कर देंगे, ऐड कर देंगे और इसको अलाउ कर देंगे, तो भी वही इफेक्ट आएगा, 6,000 का इफेक्ट आएगा. चॉइस इज योर. डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, Allowed. 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 Donation, Not Not allowed. allowed. not allowed. Electricity, water, Allowed. Allowed. bad debts, Allowed. Allowed. net profit, Allowed. Allowed. starting point, yes, allowed, 100%. Now let us go to the credit side. Gross profit, Allowed. Allowed. discount received, Allowed. 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 Commission earned,
Allowed. 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 Rent from let out building. Not Not allowed. Not allowed. Very good. I am very happy. मतलब मेरा पर्पस मैं जो ऑब्जेक्टिव के साथ चला था. Thank you very much A1 division. Capital gain. Not allowed. Not allowed. Sundry business income. Allowed. Allowed. Shabash. Agriculture income. Not allowed. Shabash. Not allowed. Thank you very much. Yes. तो likewise कोई भी क्वेश्चन आएगा बेटा पहले एडजस्टमेंट पढ़ लो, फिर इसमें देखो कौन सा अलाउड है कौन सा डिसअलाउड है, जो भी डेबिट साइड का डिसअलाउड है उसको ऐड करते जाओ, जो भी क्रेडिट साइड का डिसअलाउड है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ, खत्म. ओके. कल भी एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, बाकी आप क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर सकते हो. हैव अ कॉन्फिडेंस नाउ ऑन यू, यू कैन डू इट. Okay, so kindly take down the format. But next week, 100% now I'm going to start with the next topic as capital gain. Capital gain के लिए क्या है आपका section 45 to 55. और फिर उसके last week other sources, chapter over. देख लिया direct tax. फिर सेमेस्टर 6 में इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे जीएसटी. लाइफ में कभी भी टैक्स का एप्लीकेशन करोगे तो तुमको मुझे याद करना पड़ेगा एक सर से जिन्होंने टैक्स सिखाया था, है कि नहीं? हाँ सर, तो आप Yes, sir. थैंक यू. So kindly complete the format. Again the format will remain same. तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, I have written professional income. Now I am writing business income. है ना? ये थोड़ा डिफरेंस है. Because this is income from business. That was CA हो गया, डॉक्टर हो गया. These are the professions. Sachin, Poonam and all. Kindly be ready any day again. We will अपना सैलरी तक हो गया था ना करेक्शन. हाँ सर. हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस प्रोफेशन अपन करते रहेंगे. फॉर अदर स्टूडेंट these are assignment. Any day I can ask for the assignment now. Keep these topics ready. कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता है या समझ में नहीं आता है मुझसे पूछने का. एंड आप लोग अनसॉल्व क्वेश्चन का भी करके देख बताने का, जैसे आपने बताया ना रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सैलरी, बोला सर ये आंसर्स करेक्ट है, ऐसे करेक्ट करके सर कॉलेज से जाते हो? जाना ही पड़ता है. आपको छुट्टी नहीं होती? 7:30 अभी जब से एडमिशन चल रहा है तो हालत ही है. बट वी एंजॉय. जैसे सचिन को, विराट को क्रिकेट खेलना पसंद आता है, टेस्ट मैच में भी 5 दिन तक पड़े रहते हैं ना ग्राउंड पे, वैसे हमको टीचिंग में अच्छा लगता है. कितना भी मेहनत करो, सुबह बच्चों के साथ टीच करो, उनको सिखा दो, उनको समझ में आता है तो बहुत दिल को तसल्ली मिलती है. आज मेरे बच्चों ने आंसर दिया, आई वाज वेरी हैप्पी. A2 डिवीजन अभी आप सर नए हो वहाँ पे? मतलब ऐसा प्लेयर ही नहीं है एकदम, बहुत प्लेयर है सर, आपसे डरते बहुत लोग. बट धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है. बट आई थिंक इट वाज टू लेट जब भी मैंने स्टार्ट करा. सैलरी मेन सैलरी सब खत्म हो गया.
क्योंकि मैंने Sir? यस बेटा, सर आप कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल है ना? हाँ जी, ओके। वाइस प्रिंसिपल बाद की पोस्ट है, मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, प्रोफेसर हूँ इसके लिए वाइस प्रिंसिपल वो मैं पहला प्रायोरिटी देता हूँ। और किसी बच्ची ने पूछा रिगार्डिंग आई हैव अ इनकम फ्रॉम ऑल हेड, नॉट ओनली सैलरी, मेरा हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है, मेरा कैपिटल गेन, मैं लास्ट में अपना एग्जांपल दूंगा। तो देयर माइट बी एनी एसएससी व्हिच विल हैव इनकम फ्रॉम ऑल द हेड्स, आपको सारे हेड्स के बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो आप उनका टैक्स लायबिलिटी नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, so let's proceed. We'll start with this net profit of 1,73,000. Okay. We'll write the net profit here, 1,73,000. Now I will add all expenses which are disallowed. Which are the expenses which were disallowed? Let me check here. Salary was allowed. Sundry expenses was allowed. सर नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट दोनों दिया रहेगा तो कैसे करते हैं? नहीं, नेट प्रॉफिट से ही चालू करेंगे ना, मेरा नेट प्रॉफिट में एरर है ना। ग्रॉस प्रॉफिट का तो भी अगर एरर होगा नेट प्रॉफिट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सपोज मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को कोई एरर होता, लेट्स से दिस एग्जांपल, यहाँ पे हमने कुछ लिया रहता, वो भी तो कैरी फॉरवर्ड होके नेट प्रॉफिट में दिखता था कि वही ग्रॉस प्रॉफिट इधर क्रेडिट होता था और उसी की वजह से यहाँ प्रॉफिट ज्यादा दिखता था या कम दिखता था। तो अगर नेट प्रॉफिट लिया मतलब इट इज कवरिंग माय ग्रॉस प्रॉफिट, यस और नो? So we'll start from the net profit only. Understood, Sachin? हाँ सर। तो हमने देखा पोस्टेज चलेगा, ट्रांसपोर्ट भी आपने बोला अलाउड है सर, यस। सैलरी टू प्रोप्राइटर आपने बोला था नॉट अलाउड। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? हाउ मच टू बी एडेड? 50,000। 50,000 we will add sir, very correct। नेक्स्ट क्या था? रेंट आपने बोला सर चलेगा, नो प्रॉब्लम। आरटीडी क्या बोला था आपने? क्या बोला था? Not allowed, sir. Not Reserves allowed। allowed नहीं. तो ऐड हो नहीं जाएगा। चलेगा। कितना ऐड करेंगे बेटा आरटीडी में? 20,000. 20,000 to be added। Okay। Then municipal tax on let out property नहीं No, चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं। ये कहाँ चलेगा? ये हाउस प्रॉपर्टी में चलेगा, जो अभी इसके पहला वाला टॉपिक में पढ़ा था, यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, बट आज तक आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ले लिया करते थे, इसकी वजह से आप जो प्रॉफिट कंप्यूट करते थे वो रॉन्ग प्रॉफिट होता था। उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट यही करता था जो आज आप कर रहे हो, और उसी का पैसा लेता था। तो म्युनिसिपल टैक्स कितना था बेटा? 4,000। 4,000। नेक्स्ट लीगल एक्सपेंसेस चलेगा, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। लीगल एडवाइस तो चाहिए ना, नहीं तो मैं बिजनेस कैसे चलाऊंगा? ठीक है ना। सीएस चलेगा सर। चलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। इंटरेस्ट ऑन कितना है बेटा? 60,000। 2,000। राइट, 60,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चाहिए बिजनेस में, करंट अकाउंट से कभी लेते हो तो चाहिए, बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड। डेप्रिसिएशन, देयर आर टू ऑप्शन, इधर यू कैन डायरेक्टली टेक 6,000, इसको माइनस 10,000 करके जो 6,000 डिसअलाउड है वो लिख लो, या सिर्फ 10,000 अलाउड है वो लिख लो, या इसको डिसअलाउड करके इसको अलाउ करो तो भी चलेगा। सर ये 10,000 जो अलाउड है वो ऐसा कुछ मशीनरी के अगेंस्ट है? नहीं नहीं नहीं, क्या है? पूरा जो भी एसेट होगा, वी डोंट नो,
बट इनकम टैक्स रूल मैंने क्या बताया था बेटा, फाइनेंस एक्ट, जो हर एक साल चेंज होता है। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर इसका आपका कंप्यूटर पे depreciation was 60%. Now the computer पे depreciation is 100%. 100% एक साल में स्क्रैप होता है, ऐसा बिजनेस मैन का मानना है। निकाल दो और नया पीसी ले लो, चलेगा पूरा राइट ऑफ पूरा 100%। बट वैसा नहीं होता। फर्नीचर पे अगर ऑफिस फर्नीचर है सिर्फ 5% डिप्रिसिएशन मिलता है, बट वही फर्नीचर अगर आपके स्कूल एंड कॉलेज का है 15% मिलता है। ऐसा क्यों? अरे स्कूल में ज्यादा डिप्रिसिएट होता है ये अपना फर्नीचर, ऐसा रूल है। अगेन रूल में क्यों नहीं पूछने का, रूल में क्यों नहीं अलाउड है इस तरह से चीजें, ठीक है। चाहे वो रूल कोई भी हो, तालिबान भी रूल करता है तो रूल है। मतलब किसी देश हड़प लेने का। हाँ, मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है, whatever they will say you have to abide, otherwise you leave the country। जंगल में रहो, समंदर में रहो, ऐसा है। रूल में कोई इफ एंड बट नहीं चलता। तो हियर व्हाट आई हैव अज्यूम, इसको मैंने डिसअलाउड कर दिया है, तो मैं ऐड कर दूंगा, या फिर डायरेक्ट 6000 का इफेक्ट लूंगा तो भी चलेगा। समझा आप लोगों ने? यस सर। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड आपने बोला सर चलेगा, डोनेशन नहीं चलेगा। और हम लोग FIJC से डोनेशन ले रहे थे, याद है? इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल ले रहे थे, याद है? सब रॉन्ग कर रहे थे। और कुछ है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ऐड करो, कितने डिसअलाउड हो गए? 1,45,000। 145। ऐड कर देंगे। अब जाएंगे क्रेडिट साइड, वर्क प्रॉफिट तो अलाउड है, डिस्काउंट भी अलाउड है, कमीशन भी अलाउड है। रेंट फ्रॉम लेट आउट बिल्डिंग, Not allowed. नॉट अलाउड। ये क्या हो जाएगा? इनकम विच आर नॉट अलाउड, कितना है? 20,000। 20,000 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, रेंट रिसीव। कैपिटल गेन, अलाउड और नॉट अलाउड? 28,000 allowed। नॉट अलाउड, Not allowed sir। Not allowed है ये। ये भी नॉट अलाउड है, बिजनेस से नहीं कमाया। इसका नेक्स्ट चैप्टर अभी चालू करेंगे तो कैपिटल गेन भी पढ़ना क्लियर हो जाएगा। और एक है बिजनेस इनकम तो चलेगा, एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम 42। Not allowed नॉट agriculture। अलाउड। अच्छा, तो कहाँ जाता है एग्रीकल्चर इनकम अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इट इज फुल्ली एग्जम्प्टेड। आपको पता है महिंद्रा, टाटा, ये लोग सब बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट है। अभी जो फार्म लॉ आ रहा है ये इनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बना रही है। जब तक फार्मर फार्म करेगा ना, इंडिया कभी भी रिच नहीं बन सकता। जब इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल फार्मिंग करेंगे ना, इंडिया विल बी द रिचेस्ट कंट्री। समझा आप लोगों ने? हाँ सर। टोटल कितना हो गया? 90,000। टैक्सेबल इनकम कितना हो गया बेटा? दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो माइनस कर 2,28,000। एब्सोल्युटली राइट। बहुत, लेट मी चेक। यस, सही जवाब।
ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी ले सकते थे अपन। ये कैसे किया है सर? हाँ, देयर आर टू वे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। एक वही ओनली इनकम माइनस एक्सपेंसेस ले लिया है, एंड दूसरा वाला अभी जो सिखाया, एक्सपेंसेस इनएडमिसिबल एंड इनकम इनएडमिसिबल, अभी ये मेथड से करा है। दोनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को किया हुआ है, ओनली फॉर प्रैक्टिस, ओनली फॉर प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस। now we have less than 1 minute. Kindly do few questions practice and come tomorrow. Tomorrow we will take it up few more questions and then we'll directly go for capital gain. Capital Till gain. then, be at home, take care of yourself. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank Bye. you, sir. Bye, Rita. Bye. Thank you, sir.